Hello friends. Today topic is place of supply under GST Act. What is importance and what is need for the place of supply of goods and service under GST? So answer is the basic principle of the GST is that it should be effectively tax the consumption of such supplies at the destination thereof or as the case may be at the point of the consumption. So place of supply provision determine the place is it taxable jurisdictions. This define taxable jurisdictions where the tax should reach. The place of supply determine the whether a transaction is intrastate or interstate. In other words, the place of supply of goods or services, it's required to determine whether a supply is subject to CGST plus SGST in a given state or union territory, or else it would be attract the IGST in case of interstate supply. To determine the actual nature of the movement of goods and services, it is imperative to understand the place of supply of such goods or services. It plays a vital role in the identify whether the CGST, SGST or IGST will be levied on any transactions. So in today's topic, we will discuss movement of goods, movement of the non-movement of the goods, movement of services, non-movement of the services, goods supply on a vessel or conveyances, import and export, and different situation under the place of supply. So in today's topic, we will cover section 10 to 13 under IGST Act. So friends, I Ravi Kumar welcome you all in my YouTube channel Ravi Ryan and Associate. Let's start today PPT. So as I told, today we will discuss section 10, 11 and 12 and 13 under IGST Act. Section 10 says domestic goods. Section 11 international goods. Section 12 domestic services, and section 13 is services under international. So we will cover this all four section today in broadly manner. सो दोस्तों, जैसे कि हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से ब्रह्मा विष्णु महेश को एक दर्जा दिया गया है। उनको एक सृष्टि के रचयिता है, एक सृष्टि को चलाने वाले हैं और एक सृष्टि का अंत करने वाले हैं। सो उसी तरह हमारे जीएसटी एक्ट में मैंने थोड़ी सी कोशिश की है कि लिंक करने की कि ब्रह्मा इज़ प्लेइंग द रोल एज ए पार्लियामेंट, एज ए लॉ मेकर. So, and Vishnu is playing as the consultant department officer or the implementing, and Mahesh, the Lord Shiva, is playing as the role of the judiciary, interpreting amendment laws. So these all. So the parliament is they are the lawmaker like Brahma, the consultant, the department officer implementing. They all are playing role just like a Vishnu who's playing this world, and this Mahisha known as a destroyer of this universe. So means the last stage of the judiciary and interpreting amendment laws. Let's move ahead. So GST synopsis. GST's first section is cover levy. Levy means as we discussed earlier, levy is generated under CGST Act 9. This section 9 gives power of levy for goods and services. So supply of taxable event, schedule 1 and 3, goods and services or both taxable object, place of supply, nature of levy under CS or IGST, exemptions of services. In assessment, who will liable to pay, forwarding contact mechanism and reverse mechanism charges is pay or special cases. Time of supply, when you are becoming liable to pay. Classification at the rate of you pay, schedule second of rate schedule. Valuation, on what value you pay. Compliance is ITC credit on what, when and how much. Records, invoice, debit note, credit note or delivery challan, payments, returns and periodical annual returns. So we already discussed this levy and assessment and compliances in my previous PPTs. So let's move ahead. Place of supply under the IGST Act. Place of supply. Place of supply means first we are discussing the goods. First scenario is goods. Goods, domestic transaction, section 10. Import export, section 11. In case of service, supply domestic India, section 12. Supply outside India, section 13. And OIDER database, information database के केस में global supply, section 14. So these all the sections give power
to define and determine the place of supply sale. We'll discuss in detail in further in coming slides. Proposed GST model. So फर्स्ट इज GST इंट्रा स्टेट है, CGST एंड SGST टैक्स लेवी होगा. इंटर स्टेट के केस में IGST लेविड होगा. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द GST मॉडल. सेम स्टेट में है तो C और S, और अदर स्टेट्स में इंटर स्टेट है तो उस केस में IGST. जनरल रूल फॉर प्लेस ऑफ सप्लाई, टाइप ऑफ टैक्स. C और S अप्लाई होगा तो उस केस में आपका लोकेशन ऑफ सप्लाई एंड प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी सेम. इंटीग्रेटेड टैक्स लगेगा IGST जहाँ पे लगेगा, इसमें लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लायर मीन्स दैट वुड बी इन डिफरेंट स्टेट. एलिजिबिलिटी, क्रेडिट एलिजिबिलिटी मानी वहाँ पर एलिजिबल होगा जहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई एंड लोकेशन ऑफ रिसीवर बोथ इन अ सेम स्टेट. एंड नॉट एलिजिबल जहाँ पर क्रेडिट नहीं मिलेगा, वहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई एंड लोकेशन ऑफ सप्लाई वुड बी इन डिफरेंट स्टेट. विल डिस्कस इन डिटेल इन फर्दर कमिंग स्लाइड्स. Error in place of supply, IGST paid as C, S और I. गलती से कोई हमने अगर C और S का इनपुट हमने I में ले लिया, I का हमने टैक्स C और S के अंदर जमा कर दिया, तो हमें इसको इंटरेस्ट जब अपनी एनुअल रिटर्न 9 हम सबमिट करेंगे अंडर सेक्शन GSTR 39 के अकॉर्डिंग अपनी रिटर्न्स फाइल करेंगे. सो हम अपनी एंट्री को रेक्टिफाइड करेंगे और जो टैक्स हमने गलत कंज्यूम कर लिया है उसको हम रिवर्स करेंगे, और एक्चुअल टैक्स जो हमें जमा करना चाहिए था उसको हम एक्चुअल जमा कराएंगे विद इंटरेस्ट के साथ. लेट सपोज मेरा IGST बनता था और मैंने C और S के साथ C और S में उसको जमा करा दिया, तो C और S का पहले मैं रिफ़ंड क्लेम करूँगा और I जो मेरा बनता था उसको मैं इंटरेस्ट के साथ गवर्नमेंट को जमा कराऊँगा. इसमें इसको सेट ऑफ का राइट्स GST प्रोविज़न के अंदर नहीं है. जो गलत हमने टैक्स कंज्यूम कर लिया है वो हम रिफ़ंड के लिए अप्लाई करेंगे, गवर्नमेंट हमें उसको रिफ़ंड करेगी जो गलत अमाउंट हमने डिपॉजिट कर दिया है, और जो एक्चुअल में करना चाहिए था वो हम जमा कराएंगे विद इंटरेस्ट के साथ. So section 77(1) refund of wrongly paid tax. A registered person who has paid the C plus S or C plus CUT GST, but which is subsequently held to be an IGST shall be refund the amount of the tax so paid. जो गलती से पे कर दिया है वो उसको रिफंड के लिए अप्लाई किया जाएगा, वो कंपनसेट नहीं होगा. In such manner and subject to such condition as may be prescribed. Section 77(2) says no interest. A registered person who has paid IGST but which is subsequently held to be in an interested supply shall not be required to pay any interest on the amount of C plus S central plus state payable. सो दिस इज कॉन्सेप्ट इज़ वेरी मच क्लियर कि गलत आपने टैक्स जमा कर दिया, आप रिफंड अप्लाई करेंगे और जो टैक्स आपने जो एक्चुअल में करना चाहिए था वो आप जमा करेंगे विद इंटरेस्ट के साथ. और कुछ एक्सेप्शंस आ रही है जहाँ पर आपको इंटरेस्ट जमा नहीं करेगा, दैट इज डिफाइंड इन अदर एक्सेप्शनल केस. प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स डोमेस्टिक, सेक्शन 10 IGST एक्ट. फर्स्ट कंडीशन Section 10 IGST condition. Section 10(1)(a) supply involves movement of goods. Location of goods at the time at which movement terminate for delivery to recipient means जब किसी ट्रांजेक्शन में दो पार्टी इन्वॉल्वमेंट सप्लायर एंड रिसिपिटेंट, जब वो गुड्स एक बंदा सप्लायर कर रहा है दूसरा बंदा रिसीव कर रहा है, उस केस में क्या प्लेस ऑफ सप्लाई क्या कैसे डिटरमाइन होगी. So this is the good example. When supply involve movement of goods, EFG Limited, Coimbatore, UVW Limited, तिरपुर, they both are in same state. So इस केस में जब सेम स्टेट में है तो आपको C और S अप्लाई करना पड़ेगा. दिस इज़ वेरी सिंपल. इंटरेस्टेड सेल है तो आप C और S, और इंटर है तो आप IGST अप्लाई करेंगे. नेक्स्ट स्लाइड. HIJ Limited in Delhi, STU Limited in Varanasi, both are in different state. Delhi and Varanasi is UP. जब दो डिफरेंट स्टेट है तो उस केस में आप IGST अप्लाई करेंगे. एक सप्लायर है, एक रिसिपिटेंट है, तो बोथ आर इन सेम स्टेट, C plus S सेंट्रल CGST एंड SGST. अगर बोथ सप्लायर एंड रिसिपिटेंट बोथ आर इन डिफरेंट स्टेट, उस केस में आप इंटीग्रेटेड टैक्स IGST अप्लाई करेंगे. Section 10
IGST section 10(1)(b), goods supplied on direction of the third person buyer. Principal place of business of the third person is that address in the registration certificate. is the difference between section 10(1)(a), 10(1)(b is 10(1)(b के अंदर दे आर द थ्री पार्टीज. पहले केस में दो पार्टी थे, सप्लायर एंड रिसिपिटेंट. इस केस में थ्री पार्टीज हो गई, सप्लायर, रिसिपिटेंट एंड द इंस्ट्रक्टर सप्लायर मीडिएटर. Those work under this under the instruction. Example, suppose I'm at अहमदाबाद. मेरी एक फैक्ट्री है अहमदाबाद में, मेरी कंपनी का नाम है XYZ लिमिटेड. मुझे M&O लिमिटेड से फ़ोन आता है जो कि सामान ख़रीदना चाहता है, जो कोलकाता में बैठा है, मुझे फ़ोन करता है, बोलता है जी अहमदाबाद में मुझे फ़ोन करता है XYZ मेरी कंपनी को कि आप मेरे मुझे एक टी शर्ट का जो होलसेल प्रिंट करवाना है, ये होलसेल में माल लेना है, मैं आपसे लेना चाहता हूँ, लेकिन आप मुझे डिलीवर ना करके आप मेरी जो दूसरी फैक्ट्री है, मेरा जो क्लाइंट है सूरत में ही बैठा है, सेम स्टेट में, अहमदाबाद और सूरत दोनों सेम स्टेट है, आप वहाँ पर उसको सप्लाई कर दीजिए. करेक्ट. मैं अहमदाबाद में बैठा हूँ, जहाँ पे मुझे गुड सप्लाई करनी है वो भी सूरत में, बोथ आर सेम स्टेट, लेकिन जहाँ से मुझे ऑर्डर आया है वो कोलकाता. तो मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा कोलकाता, क्योंकि मुझे ऑर्डर कहाँ से आया है, कोलकाता से. और मैं कहाँ पे डिलीवर कर रहा हूँ डजेंट मैटर, मुझे ऑर्डर कहाँ से हुआ है वो मैं जो ऑरिजिन प्लेस क्या है वो कोलकाता है. सो मेरे लिए प्लेस ऑफ सप्लाई जो है, लोकेशन ऑफ सप्लाई कोलकाता माना जाएगा. वेयर द गुड्स आर ऑन द डायरेक्शन ऑफ थर्ड पर्सन. कोलकाता के बंदे ने मुझे ऑर्डर दिया कि आप थर्ड पर्सन को जो सूरत में बैठा है उसको डिलीवर कर दीजिए. इस केस में जो मेरी और कोलकाता के बीच में ट्रांजेक्शन होगी वो IGST की ट्रांजेक्शन होगी. करेक्ट. सो इट मीन्स इस केस में 10(1)(b) के अंदर तीन पार्टी काम करती है, तीन पार्टियाँ आपस में इन्वॉल्वमेंट होती है. वेयर द गुड्स आर ऑन द डायरेक्शन ऑफ द थर्ड पर्सन. सेम केस, मैं हूँ इंदौर में, भोपाल से मुझे फ़ोन आता है, इंदौर दोनों ही सेम स्टेट है मध्य प्रदेश के अंदर, फ़ोन आता है कि आप हैदराबाद में गुड डिलीवर कर दीजिए. सो मेरी जो बिलिंग होगी वो सेम स्टेट में होगी, C और S टैक्स अप्लाई होगा, क्योंकि बोथ आर इन सेम इंट्रास्टेट ट्रांजेक्शन. सो इस केस में आपस में इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन्स अप्लाई होगा. लेकिन जो मेरी गुड्स डिलीवरी हो रही है वो हैदराबाद हो रही है, लेकिन मेरे को जो ऑर्डर आया है वो भोपाल से आया है. मैं अपना बिल जो रेज़ करूँगा वो भोपाल को रेज़ करूँगा, मुझे जो पैसे मिलेंगे वो भोपाल से ही मिलेंगे. सो इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई मेरी मानी जाएगी भोपाल. क्लियर. थर्ड, 10(1)(c), supply does not involve movement of goods, means location of goods at the time of the delivery to the recipient. फॉर एग्जाम्पल ऐसे बहुत से सिनेरियो होते हैं जहाँ पर हम नॉन मूवेबल गुड्स के डील करते हैं. कभी डीलिंग जो होती है नॉन मूवेबल गुड्स के साथ होती है. मर्जर डीमर्जर के केस में सपोज मैं हूँ दिल्ली में बैठा हूँ, मैं अपनी एक प्रॉपर्टी मेरी एक फैक्ट्री है, मैं अपनी पूरी फैक्ट्री बेचना चाहता हूँ. अब मैं अपनी पूरी फैक्ट्री उठा के कहीं किसी बायर को तो दे के नहीं आऊँगा. बायर मेरे पास आएगा, मेरी फैक्ट्री खरीदेगा, मेरी फैक्ट्री में जो जो इक्विपमेंट्स लगे हैं, एसेट लगे हैं, इंक्लूडिंग लैंड, वो उसको बाय करेगा. इट मीन्स ही इज़ वेरी मच इंटरेस्टेड इन माई प्रॉपर्टी टू इन्वेस्ट फॉर फर्दर रनिंग बिजनेस एट माई प्लेस. वो मेरी जगह दिल्ली में आएगा, मेरी फैक्ट्री को मुआयना करेगा, देखेगा और उसको बाय करेगा, और डीलिंग होगी, एग्रीमेंट होगा, और वो मेरी पूरी जितनी भी एसेट थी पूरे विद लैंड के साथ मेरी फैक्ट्री को वो परचेज करेगा. इट मीन्स मेरा जो एसेट था, मेरी जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो एक ही जगह पे है, दिल्ली में. सो इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई जो है दिल्ली ही मानी जाएगी, क्योंकि मैं अपना लैंड और अपनी फैक्ट्री उठा के दूसरे स्टेट पे लेके नहीं गया. दूसरे स्टेट का बंदा जो इंटरेस्टेड था वो दिल्ली आया और मेरे पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट किया, और उसी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, लैंड के साथ, और जितने भी इक्विपमेंट उसके साथ जुड़े हुए थे वो सब उसने उसको परचेज़ किया. सो प्लेस ऑफ सप्लाईज वुड भी जहाँ पर वो प्रॉपर्टी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी वहाँ पर आपस में एक साथ क्लब है. मेनली ये चीज़ केस आता है मर्जर और डीमर्जर के केस में. क्लियर. नेक्स्ट सेक्शन इज सॉरी
नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन 10(1)(d). गुड्स आर असेंबल्ड और इंस्टॉल्ड एट अ साइट। इस केस में एक ऐसी जगह जहाँ पर हम गुड असेंबल इरेक्ट करते हैं। लेट्स से मेरी दिल्ली में प्रॉपर्टी है, बिल्डिंग है, और मुझे वहाँ लिफ्ट लगाना है। सो लिफ्ट लगाने के लिए जो है मुझे अपनी बिल्डिंग कहीं लेके जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लिफ्ट जो है बिल्डिंग के प्रीमाइसिस में ही लगेगा। इट मीन्स जो सामान गुड्स इसके अंदर इंक्लूड होगा, जो भी लगेगा असेंबल होगा, वो इसी बिल्डिंग के प्रीमाइसिस के अंदर होगा। इट मीन्स अगर मैंने उसका जितने भी रॉ मटेरियल है दूसरे स्टेट से भी परचेज़ किए हैं, सो जिस स्टेट में, जिस प्रेमाइसिस पे, जिस लोकेशन पर सर्विस गुड्स डिलीवर की जा रही है, जहाँ पर उसको असेंबल्ड किया जा रहा है, इंस्टॉल किया जा रहा है, वो प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। करेक्ट। सेक्शन 10(1)(e). Goods supplied on board a conveyance is that vessel, aircraft, train and vehicle etc. Location at which such goods are taken on board. अंडरलाइन। सपोज़ कीजिए मैं दिल्ली से बॉम्बे जा रहा हूँ। दिल्ली से बॉम्बे जाते हुए मैं दिल्ली से ट्रेन पे बैठा और बॉम्बे तक मेरा डेस्टिनेशन जो लास्ट स्टॉप है बॉम्बे है। बीच में मैंने कोई एमपी से स्टेशन पर मैंने कोई आइटम या कोई गुड्स परचेज़ की। हाँ, अभी हम गुड्स की बात कर रहे हैं, तो मैंने कोई गुड्स परचेज़ किया, तो उसका लोकेशन सप्लाई क्या माना जाएगा? लोकेशन सप्लाई माना जाएगा जिस स्टेशन पर गुड्स जो है ट्रेन में बोर्ड हुआ, वो लोकेशन ऑफ सप्लाई माना जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा जिस स्टेशन पर, जिस जगह पर वो सामान ट्रेन के अंदर या वेसल के अंदर या फिर एयरक्राफ्ट के अंदर बोर्ड हुआ। करेक्ट। उस जगह को प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, सेक्शन 11 ऑफ IGST एक्ट। प्लेस ऑफ सप्लाई in case of international transactions. Import of goods, location of the importer. Export of goods, location of outside India. दिस इज़ वेरी सिंपल। अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो जो इंडिया में आपका जिस स्टेट पे, जिस लोकेशन पे आप इंपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्टर जो है वो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। और एक्सपोर्ट के केस में लोकेशन आउटसाइड इंडिया, जिस कंट्री पे आप भेज रहे हैं, वो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। अभी तक हम जो बात कर रहे थे वो गुड्स की बात थी, अभी हम बात करेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई अंडर सर्विस। सेक्शन 12, लोकेशन सप्लाई एंड लोकेशन ऑफ रेसिपिडेंट इन इंडिया। कंडीशंस। Section 215, location of the supplier of the supply. First condition, where a supplier is made from a place of business for which the registration has been obtained, the location of the such place of the business. Suppose मैं एक चार्टेड अकाउंटेंट हूँ और मैंने दिल्ली का रजिस्ट्रेशन लिया है। ऑडिट के पर्पज़ से अगर मुझे दिल्ली से बाहर भी सर्विस देनी पड़ती है, तो मैं अलग अलग डिफरेंट स्टेट में जाके अपनी सर्विसेज देता हूँ। मैं कोई वेबिनार डिलीवर करता हूँ या कोई ऑडिट सर्विसेज देता हूँ दिल्ली से बाहर, लेकिन मेरी जो प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी क्यों दिल्ली मानी जाएगी, क्योंकि मेरा रजिस्ट्रेशन जो है दिल्ली का मैंने ले रखा है। मेरा जो GST रजिस्ट्रेशन है वो दिल्ली का है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन ऑब्टेन्ड। जिस स्टेट में आपने रजिस्ट्रेशन ले रखा है वो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। सेकेंड कंडीशन, where a supply is made from the place other than the place of the business for which registration has been obtained, fixed establishment elsewhere. अगर आपने किसी फिक्स व्हाट डज इट मीन फिक्स एस्टेब्लिशमेंट, एक ऐसा प्रीमाइसेस जहाँ से आपने रजिस्ट्रेशन ले रखा है वो आपका रजिस्टर्ड एड्रेस माना जाएगा। द लोकेशन ऑफ सच फिक्स एस्टेब्लिशमेंट। सपोज़ कीजिए मैं प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और मेरा टर्नओवर जो है 20 लाख से कम है, तो मुझे रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन GST के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई, अगर मैं कोई सप्लाई पंजाब में जाके देता हूँ, तमिलनाडु में जाके देता हूँ, तो मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा, क्योंकि मैं तो रजिस्टर्ड पार्टी नहीं हूँ।
सो मेरा जो है प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा वो जगह जहाँ से मैं अपनी सर्विसेज डिलीवर कर रहा हूँ, मेरा रेजिडेंस एड्रेस, मेरा फिक्स एस्टेब्लिशमेंट जहाँ से मैं बिजनेस रन कर रहा हूँ, मेरा ऑफिस का एड्रेस या मेरा घर का रेजिडेंट का एड्रेस जहाँ से मैं, जो मेरा फिक्स एस्टेब्लिशमेंट है, फिक्स ऑफिस का एड्रेस, और इसमें भी योर रेजिडेंट एड्रेस की मोस्टली जो प्रोफेशनल्स हैं वो घर से भी ऑपरेट करते हैं. Where a supply, third case, where a supply is made from the more than one establishment, whether the place of business or fixed establishment, the location of the establishment most directly concerned with the provision of the supply. सपोज कीजिए मेरा दिल्ली, मैं एक चार्टेड अकाउंटेंट हूँ, मेरा दिल्ली में ऑफिस है, मेरा एक बॉम्बे में भी एड्रेस है, मेरा तमिलनाडु में भी एड्रेस है, मेरे मेरे जो 3 एड्रेसेस हैं, और मैं जो सर्विस दे रहा हूँ पंजाब में किसी बैंक में जाके अपनी सर्विसेज दे रहा हूँ. तो इस केस में मैं अपनी सर्विसेज जो है पंजाब में किसी बैंक को दे रहा हूँ, और मैं जो है हम तीनों ब्रांच के मैनेजर जो है वहाँ जाके सर्विस डिलीवर कर रहे हैं पंजाब में जाके. सो कौन सी ब्रांच को प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा, लोकेशन ऑफ सप्लाई किस ब्रांच को माना जाएगा? क्लियर कट अंडर जीएसटी प्रोविज़न, जिस ब्रांच के साथ पंजाब में जिस बैंक में ऑडिट चल रही है उस किस ब्रांच के साथ उन्होंने एग्रीमेंट किया है, किस ब्रांच के साथ उन्होंने ट्रांजेक्शन्स डील की है, प्रिंसिपल ब्रांच, प्राइमरी ब्रांच जिनके साथ उन्होंने कोऑर्डिनेट किया था, उसको हम प्लेस ऑफ लोकेशन ऑफ सप्लाई या प्लेस माना जाएगा. बाकी दूसरे ब्रांच के मैनेजर जो वहाँ पे सर्विसेज डिलीवर कर रहे हैं पंजाब के अंदर, दे आर जस्ट सच डिलीवरिंग सर्विसेज एज ए बिकॉज वी ऑल आर पार्टनर. So then we are just they all are delivering the services, but the place of location of supply would be the primary location जहाँ पंजाब बैंक के साथ एग्रीमेंट हुआ और सर्विसेज डिलीवर हुई. All others, in absence of the such places, the location of the usual place of residence of the supplier. और किसी केस में जहाँ से सर्विस डिलीवर हो रही है, जहाँ पर सर्विस डिलीवर टैक्सेबल पर्सन अपनी सर्विस डिलीवर कर रहा है चाहे वो उसका घर भी हो, तो वो प्लेस ऑफ लोकेशन ऑफ सप्लाई माना जाएगा. नेक्स्ट, fixed establishment. Fixed establishment means a place other than a registered person, place of business which is characterized by a sufficient degree of permanence and suitable structure in term of human and technical resource to supply service or to receive and use service for its own need. Location of the recipient of supply, same conditions where the supply is received at a place of the business for which the registration has been obtained. ऐसी जगह जहाँ पर जिस प्रीमाइसिस का जहाँ से जिस स्टेट में रजिस्ट्रेशन ले रखा है उस स्टेट में उसको लोकेशन ऑफ सप्लाई माना जाएगा. Same condition where supply is received at the place other than the place of business for which registration has been obtained, a fixed establishment elsewhere. अगर आपका टर्नओवर 20 लाख से कम है, रजिस्ट्रेशन लिमिट से कम है, लेकिन फिर भी आप सर्विसेज डिलीवर कर रहे हो, टैक्सेबल सर्विसेज डिलीवर कर रहे हो, दूसरे प्लेसेस में कर रहे हो, दूसरे स्टेट में जाके कर रहे हो, तो आपका जो फिक्स एस्टेब्लिशमेंट है जहाँ से आप अपनी सर्विसेज डिलीवर कर रहे हो, आपका ऑफिस या रेजिडेंट एड्रेस आपका जो है लोकेशन ऑफ सप्लाई माना जाएगा. Where a supply is received at the more than one establishment, whether the place of the business fixed establishment, जहाँ पर जैसे हमने ब्रांचेस की बात की, जिस ब्रांच के साथ मेन कंसर्न प्राइमरी ब्रांच के साथ जिसके साथ डील हो रही है, जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है, उसको प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा, उसको लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट माना जाएगा जिस मेन ब्रांच के साथ काम हो रहा है. बाकी सारी ब्रांचेस को सेकेंडरी माना जाएगा. In absence of the such places, the location of the usual place of resident of recipient. Same condition. Section 12(2) general rule for services. First, supply to registered person, place of supply and location of recipient both are same, will be equal. Unregistered person के केस में अगर एड्रेस नोन है तो place of supply लोकेशन ऑफ recipient both are same माना जाएगा. एड्रेस नॉट नोन है तो place of supply and location of service, place of services and location of services supplier would be same. Location of the immovable property.
location at which the immovable property or boat or vessel, as the case may be, is located or intend to be located directly in relation to an immovable property. Underline. Architect, interior decorators, surveyor, engineers, accommodation by hotel, guest house, homestay, club, or the campsite, houseboat, renting, construction, accommodation for organizing any marriage or reception or matter related thereto, official, social, culture, religious, or business function, place of supply, location of the property. Most important, place of supply would be location of the property. एग्जाम्पल, मैं दिल्ली में रहता हूँ और मैं इंदौर गया, इंदौर के किसी होटल में मैं जाके रुका, और जब मैंने वहाँ में एक हफ़्ते के लिए रुका और जब मेरा आखिरी दिन था मैंने उनसे बिल मांगा, तो वो मुझे जो है बिल मैं रजिस्टर्ड पर्सन हूँ, मैंने अपना जीएसटी नंबर उनको दिया, लेकिन वो बिल में मैं दिल्ली में हूँ और वो जो प्रॉपर्टी इंदौर में है। लॉ के हिसाब से, एक्ट के हिसाब से आईजीएसटी लगना चाहिए क्योंकि बोथ आर डिफरेंट स्टेट, लेकिन इस केस में ये कहता है कि प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी लोकेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी कहाँ पर है? इंदौर में, जो कि एमपी में आती है। एमपी के अंडर क्या मीन्स जिस स्टेट में प्रॉपर्टी है उसी स्टेट में उसको लोकल सर्विसेज माना जाएगा, और सी और एस सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी उसके अंदर अप्लाई होगा, उसमें आईजीएसटी नहीं लगेगा। अगर वो मुझे आईजीएसटी लगा के देते हैं बिल के ऊपर, तो प्लेस ऑफ सप्लाई जो है उसके ऊपर वो इंदौर ही लिखेंगे। इट मीन्स कि प्लेस ऑफ सप्लाई वो सेम स्टेट में हुई है, तो मुझे उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्लियर कट है, उसका इनपुट आपको नहीं मिलेगा। करेक्ट। If the location of the immovable property or boat or vessel located or intend to be located outside the India, the place of supply shall be the location of the recipient. Place of supply equal to location of the recipient. Notes for property. Provided that if the location of the immovable property or boat or vessel is located or intend to be located outside India, the place of supply shall be location of the recipient. Clear cut. अगर आपकी कोई भी प्रॉपर्टी बाहर है, लेकिन उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई जो है, जो उसकी सर्विसेज ले रहा है, प्लेस ऑफ लोकेशन ऑफ द रेसिपिडेंट, जहाँ वो रहते हैं वो उसका प्लेस लोकेशन ऑफ द रेसिपिडेंट का लोकेशन माना जाएगा। सेकेंड कंडीशन, where the immovable property or boat or vessel is located in more than one state or union territory, the supply is treated as made in each of the respective state or union territory in proportion to the value of service separately collected or determined in term of the contract or agreement entered into this regards, or in absence of the such contract or agreement on such other basis as may be prescribed. Example, sorry, द एग्ज़ाम्पल इज़ सपोज़ मैं दिल्ली में बैठा हूँ और मेरे जो हैं 4 होटल हैं जो कि दिल्ली में भी हैं, बॉम्बे, चेन्नई एंड कलकत्ता, चारों स्टेट में मेरे होटल्स चलते हैं। लेकिन जो प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी, क्योंकि प्रॉपर्टी के केस में प्रॉपर्टी इज़ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इस केस में जिस स्टेट में प्रॉपर्टी है वो प्लेस ऑफ सप्लाई उसी स्टेट की मानी जाएगी। तो मुझे जो भी वहाँ से रिवेन्यू जनरेट होगी, चारों, जब मैं उसको क्लब करूँगा चारों स्टेट की जोड़ के, दिल्ली, बॉम्बे, चेन्नई एंड कलकत्ता, तो मुझे इसको प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा चारों स्टेट के हिसाब से, क्योंकि जिस स्टेट में प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उस स्टेट में उसको टैक्सेबल माना जाएगा, लोकल सप्लाई मानी जाएगी, और टैक्स जो है सी और एस के हिसाब से उसको डिवाइड करना पड़ेगा। मूविंग एट परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विसेज, सेक्शन 12(4), लोकेशन where the services are actually performed, restaurant, catering, personal grooming, fitness, beauty treatment and health services. Place of supply is place of the performance. छोटा सा एग्जांपल, जो आर्टिस्ट होते हैं वो जो है डिफरेंट स्टेट्स में जाकर और कंट्री, आउट ऑफ कंट्री, वो अपनी सर्विसेज डिलीवर करते हैं। सो इस केस के अंदर जिस स्टेट में वो रजिस्टर्ड हैं उनकी सप्लाई जो है, प्लेस ऑफ सप्लाई उसी स्टेट की मानी जाएगी। अगर वो रजिस्टर्ड पार्टी है तो और नॉन अनरजिस्टर्ड पार्टी के केस में जिस स्टेट में परफॉर्मेंस हो रहा है उस स्टेट में प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी, लोकेशन ऑफ सप्लाई मानी जाएगी।
और अच्छे एग्जाम्पल के साथ मैं आगे आपको स्लाइड में एक्सप्लेन करता हूँ। ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल, द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस इन रिलेशन टू ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस appraisal to a registered person shall be the location of such person. Place of supply, location of recipient. Second condition, a person other than the registered person shall be the location where the service are actually performed. Place of supply means place of the performance. जैसे हम लोग सी ए फर्म है, सी ए फर्म जो है मैं सी ए फर्म हूँ, मैं दिल्ली में रजिस्टर्ड हूँ और मैं जो है बॉम्बे में जाके अपनी सर्विसेज देता हूँ। तो मेरी जो है वहाँ पे जाके मैं ट्रेनिंग सेंटर लेता हूँ कि किसी को ट्रेनिंग देता हूँ, कोई क्लासेस जाके मैं वहाँ पर ट्रेन करता हूँ। सो मेरी जो है प्लेस ऑफ सप्लाई जो है दिल्ली ही मानी जाएगी क्योंकि मैं दिल्ली में रजिस्टर्ड पार्टी हूँ। अदरवाइज अगर मैं अनरजिस्टर्ड पार्टी हूँ तो मेरी जो सप्लाई जो प्लेस ऑफ सप्लाई जो है बॉम्बे मानी जाएगी क्योंकि मैं एक अनरजिस्टर्ड पार्टी हूँ। इवेंट बेस, एंट्री एडमिशन, where the event is actually held or where the park or such other places is located in the case of admission to a cultural, artist, sporting, scientific, education, environment event or amusement park or any other places and services auxiliary thereto. Place of supply, place where event held, जिस स्टेट में जिस जगह में सर्विसेज परफॉर्म हुई है उस स्टेट को उस जगह को हम प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। इवेंट बेस, कंडक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ ऑर्गेनाइजेशन of culture, artistic, sporting, scientific, education, entertaining event, including supply of services in relation to a conference, fair, exhibition, celebrating or similarly event or service auxiliary to organization of any of the event or services referred in a clause A or assigning of sponsorship to such event to a registered person shall be a location of the such person. जिस स्टेट में वो पर्सन रजिस्टर्ड है उसी स्टेट में उसको प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। अदरवाइज द पर्सन अदर देन द रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी द प्लेस ऑफ द वेयर द इवेंट इज एक्चुअली हेल्ड। अदरवाइज अगर अनरजिस्टर्ड पार्टी है तो जिस स्टेट में परफॉर्मेंस दी जा रही है, सर्विस डिलीवर की जा रही है, तो उस स्टेट में उसको प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। इफ द इवेंट इज हेल्ड आउटसाइड इंडिया द प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी द लोकेशन ऑफ द रिसिपिडेंट। एक्सप्लेनेशन, where the event is held in more than one state or union territory and the consolidation amount is charged for supply of services relating to such event, the place of supply of such services shall be taken as being in each of the respective state or union territory. First, in proportion to the value of the services separately collected or determined in term of the contract or agreement entered into the regards of. In the absence of the such contract or agreement on such अदर बेसिस एज मे बी प्रेस्क्राइब। सपोज कीजिए मैंने पाँच स्टेट में परफॉर्म करने का एक कंसोलिडेशन अमाउंट पे मैंने एक डील कर लिया, एक एग्रीमेंट कर लिया। तो इट मीन्स अगर मुझे और मैं अनरजिस्टर्ड पार्टी हूँ तो मुझे 5 अलग अलग स्टेट में परफॉर्मेंस देनी है, तो मुझे 5 अलग अलग स्टेट की जो परफॉर्मेंस होगी, जो वहाँ से जो रिवेन्यू कलेक्ट होगा उसको प्रोपोर्शनेट बेसिस में मैं डिवाइड करूँगा हर स्टेट में। अगर मैं रजिस्टर्ड पार्टी हूँ तो जिस स्टेट में मेरा रजिस्ट्रेशन है, इट्स वेरी सिंपल, जिस स्टेट में मेरा रजिस्ट्रेशन है मेरी प्लेस ऑफ सप्लाई वो मानी जाएगी। अदरवाइज मैं अनरजिस्टर्ड पार्टी हूँ तो जिस स्टेट में मैंने परफॉर्मेंस दी 5 स्टेट में तो उसका अलग अलग रिवेन्यू के हिसाब से प्रोपोर्शनेट किया जाएगा। क्लियर। गुड्स ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज सेक्शन 12(8). The place of the supply of the services by way of transportation of the goods including by mail or courier to a registered person shall be the location of the such person. Place of supply would be location of the recipient. A person other than the registered person shall be the location at which such goods are handed over their transportation. Place of supply, location of the handover of the goods. Passenger transportation services section 9 IGST. The place of supply of the passenger transportation service to the registered person shall be location of such person, place of supply and location of the recipient.
The person other than the registered person shall be the place where the passenger embark on the conveyance for the continued journey. अगर रजिस्टर्ड पर्सन है, जिस स्टेट में वो रजिस्टर्ड है, वो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा. अदरवाइज जिस जगह से उसने इम्बार्क किया है, चढ़े हैं उस व्हीकल में, उस जगह से उनको प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा. प्लेस ऑफ सप्लाई इक्वल टू प्लेस ऑफ embark ऑफ द पैसेंजर, provided where the right of the passage is given for a future use and the point of the embarkation is not known at the time of the issue of the right of passenger. The place of supply of such service shall be determined under section 12(2). Explanation. What For the purpose of the subsection, the return journey shall be treated as a separate journey even if the right to passenger for the onward and the return journey issue at the time of the at the same time. तो सपोज कीजिए मैंने दिल्ली से बॉम्बे से रिटर्न टिकट सेम डे की कराई. सो फर्स्ट तो इसको हम सेपरेट ट्रांजेक्शन मानेंगे. पहली ट्रांजेक्शन हो गई दिल्ली टू बॉम्बे जाने की, करेक्ट. दूसरा फिर वहाँ से बॉम्बे से वापस दिल्ली आने की दूसरी सेपरेट ट्रांजेक्शन है, उसमें जो है हमारी प्लेस ऑफ सप्लाई जो है डिफरेंट दो अलग अलग स्टेट है. फर्स्ट है दिल्ली, दूसरा है जब वहाँ से रिटर्न है तो बॉम्बे. Supply of services on board of conveyance. If any services is provided on a board or conveyance including a vessel, craft, train and motor vehicle, the first schedule point of the departure of the conveyance for the journey. Note: supply of goods would be deal by the section 10 of the IGST. ये जो हमने पहले अभी डिस्कस किया, सेक्शन 10 के अंदर जिस जगह पर माल जो है बोर्ड हुआ है ट्रेन में या वेसल में, सो उस जगह में उसको प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा. द सर्विस लाइक सप्लाई ऑफ फूड, सप्लाई ऑफ बेड रोल, प्रोवाइडिंग रिकॉर्डेड प्रोग्राम एक्सेट्रा. Train depart from the Delhi to Bombay. The food is loaded in a train at the Delhi. The food is supplied to the passenger at a different station as per the section. The place of supply will be the first schedule point is at the Delhi. Clear? टेलीकम्युनिकेशंस के केस में कैसे हम प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करेंगे. सेक्शन 12(11) सीरियल नंबर 11A के अंदर फिक्स कम्युनिकेशंस लाइन, लीज लाइन, सर्किट्स, इंटरनेट, लीज लाइन, सर्किट्स, केबल और डिश एंटीना के केस में जहां टेलीकम्युनिकेशन लाइन, लीज लाइन, सर्किट्स, केबल कनेक्शंस और डिश एंटीना जहां लगा हुआ है, जहां पे इंस्टॉल्ड है, वो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा. पोस्ट पेड मोबाइल कनेक्शन के केस में एड्रेस ऑफ द रिसिपिटेंट का एड्रेस जो है प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा. प्रीपेड कनेक्शन के केस में मोबाइल कनेक्शन एंड DTH और प्री पेमेंट बेसिस में थ्रू ए सेलिंग एजेंट, जिस दुकान पे जहाँ से आपने वो सिम कार्ड लिया है, प्रीपेड सिम कार्ड के केस में जिस दुकान से जिस जगह से आपने अपने सिम परचेज़ किया है वो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा. In any other case, the address of the recipient as per the record of the supplier of services. Where such address is not available, the location of the supply of the services. Where the lease circuit is installed in more than one state or union territory and the consolidation amount is charged for the supply of services relating to such circuits, the place of supply of such service shall be taken as being in each of the respective states or union territory in proportion of the value for service separately collected or determined in term of the contract or agreement entered into this regard, or in the absence of the such contract or agreement on such other basis as may be prescribed. बैंकिंग के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमाइन करेंगे. सेक्शन 12 IGST. बैंकिंग एंड अदर फाइनेंशियल सर्विसेज इंक्लूडिंग स्टॉक ब्रोकिंग सर्विसेज टू any person. The place of supply is the location of the recipient of service on the record of the supplier of the services. Place of supply equal to location of the recipient. If location of the recipient of the services is not available on record, location of the supplier,
द प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी लोकेशन ऑफ द सप्लाई। फॉर एग्जांपल, मेरा किसी बैंक में एक अकाउंट है और बैंक के पास जो मेरा एड्रेस है वो मेरा लोकेशन ऑफ सप्लाई माना जाएगा। अगर बैंक में कभी दूसरी बैंक जो मल्टीपल सर्विसेज देते हैं, सपोज कि मेरा मैं किसी बैंक में गया जहाँ पे मेरा अकाउंट नहीं है, मैं अपना डीडी बनवाने गया, मैंने बैंक पे पैसे दिए और मेरा डीडी बना के उन्होंने मुझे वापस कर दिया। तो इस केस में जो बैंक का एड्रेस है वो लोकेशन ऑफ सप्लाई माना जाएगा, क्योंकि मेरा अकाउंट उस बैंक में नहीं है, मेरा एड्रेस बैंक के पास नहीं है। तो उस केस में जो जहाँ पर बैंक है, बैंक के एड्रेस को ही लोकेशन ऑफ सप्लाई माना जाएगा। प्लेस ऑफ सप्लाई अदर सर्विसेज, supply of insurance services to a registered person be the location of the such person. To a person other than the registered person, the location of the recipient of the services on record of the supplier. Second condition, supply of advertisement service to the central government or state government, local authority, body and means for a states or union territory identified in the contract or agreement. Each of such state or union territory, the value of such supplies specified to the each state or union territory shall be the proportionate to the amount of attribute to services provided by way of disseminations in the respective state or union territory as may be determined in the term of the contract or agreement. In the absence of the such contract or agreement, on such other basis as may be prescribed. एक्सपोर्ट इंपोर्ट के केस में, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज वेयर द लोकेशन ऑफ सप्लाई लोकेशन रेसिपिएंट इज आउटसाइड इंडिया। import export of the services. What is import of the services? Means the supplier of service is located outside India, the recipient of services located in India, and the place of supply services in India. What does export services means? Section 2(6) means the supplier of the service is located in India, the recipient of the service is located outside India, the place of supply of services is outside India, the payment for such service has been received by the supplier of service in convertible foreign exchange. Underline convertible foreign exchange. The supplier of the service and the recipient of the service are not merely establishment of a distinct person in accordance with the explanation 1 in section 8. इंपोर्ट एक्सपोर्ट के केस में जहाँ पर जो लोकेशन ऑफ द रिसिपिडेंट, जहाँ पे सर्विस रिसीव की जा रही है, मानी जा रही है, इंडिया में किसी भी स्टेट में अगर वो सर्विस रिसिपिडेंट है तो उसका लोकेशन ऑफ द सर्विस रिसिपिडेंट का एड्रेस माना जाएगा। जनरल रूल प्लेस ऑफ सप्लाई इंटरनेशनल के केस में सेक्शन 13(2) IGST एक्ट, place of supply of service except the service specified in the subsection 3 to 13 shall be location of the recipient of the service. Place of supply equal to location of the recipient, ये माना वो सेम place को माना जाएगा। Where the location of the recipient of the service is not available in the ordinary course of business, the place of supply shall be location of the supplier of the service. Place of supply means location of the supplier. These both conditions should, will be fulfilled. Section 13(3) service on goods made physically available. Place of supply location where the services are actually performed. Services supplied in respect of the goods which are required to be made physically available. Second, by a recipient of the service, to the supplier of the services, or to a person acting on behalf of the supplier of the services in order to provide the services. Exceptions. Section 13(3) when such services are provided from the remote location by way of electronic means, the place of supply shall be the location where the goods are situated at the time of the supply of the services. Nothing contained in the clause shall apply in respect of goods which are temporarily imported into India for repair and are exported after the repair without being put to any other use in India than
that is required for such repair, then refer section 13.2. Section 13.3, services to individual. If services supplied to a individual, first represented either as the recipient of service or a person acting on behalf of the recipient, which require the physical presence of the recipient or the person acting on his behalf with the supplier for supply of services. Place of supply will be location where the services are actually performed. Doctor coming in India doing the personal consultant treatment, place of supply would be India. Example, this is the example. Section 13.4, services in relation to immovable property. As we discussed earlier in our previous slides, इमोवल प्रॉपर्टी के केस में जिस स्टेट में जिस जगह पर प्रॉपर्टी है उस जगह को ही प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। सिमिलर सेक्शन 12.3 के केस के अकॉर्डिंग प्लेस ऑफ सप्लाई लोकेशन ऑफ इमोवल प्रॉपर्टी। परफॉर्मेंस बेस, एज वी डिस्कस सिमिलर टू सेक्शन 12, 6 एंड 7, जिस स्टेट में अगर टैक्सेबल पर्सन का रजिस्टर्ड है तो जिस स्टेट में वो रजिस्टर्ड है उस स्टेट को प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। अदरवाइज अगर वो अनरजिस्टर्ड पार्टी है तो जिस स्टेट में उसने परफॉर्मेंस दी है उस स्टेट को हम परफॉर्मेंस बेस में प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे। मल्टीप्लेसेस के केस में एज वी डिस्कस अर्लियर इन 12 सेक्शन 12 के केस में अगर आप अनरजिस्टर्ड पार्टी हो और अब आप अलग अलग स्टेट में जाके परफॉर्मेंस देते हो तो आप का हर स्टेट का जो है प्रोपोर्शनेट किया जाएगा, आपका रिवेन्यू जो है प्रोपोर्शनेट होगा। तो प्लेस ऑफ सप्लाई जो है हर स्टेट में मानी जाएगी इफ़ यू आर ए अनरजिस्टर्ड पार्टी। अगर रजिस्टर्ड पार्टी है तो जिस स्टेट में आपका रजिस्ट्रेशन ले रखा है उस स्टेट को ही आप प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। सर्विसेज प्रोवाइडेड मोर देन वन स्टेट और यूनियन टेरिटरी एज वी ऑलरेडी डिस्कस। जिस स्टेट अगर आपके पास सर्विसेज सप्लाइड मोर, अगर आप एक मल्टीपल स्टेट्स में अपनी सर्विसेज देते हो और रजिस्टर्ड पार्टी हो तो जिस स्टेट में आपने रजिस्ट्रेशन ले रखा है वो माना जाएगा। अदरवाइज जिस स्टेट में आपने अनरजिस्टर्ड पार्टी हो तो जहाँ जिस स्टेट में आपने परफॉर्मेंस दी है उसको उस स्टेट में आपकी रिवेन्यू जो है प्रोपोर्शनेट की जाएगी। बैंकिंग के केस में एज वी डिस्कस इन सेक्शन 12 के अंदर बैंकिंग के रिकॉर्ड में जो आपका नाम और एड्रेस जो है वो आपका लोकेशन सप्लाई मानी जाएगी। अदरवाइज अगर आप बैंक के पास आपका रिकॉर्ड नहीं तो जिस स्टेट में जहाँ पर बैंक सेटअप है उस स्टेट को उस जगह प्रीमाइसिस को प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। सम एग्जांपल्स, intermediary service. If Mr. X in US is act as an intermediary agent to Mr. Y in India who is engaged in the manufacture of services, Mr. X procure order for a machine from the customer for selling a machine. Thus, Mr. X is facilitating the machines by Mr. Z. According, Mr. X will be the considered as an intermediary and the place of supply is outside India. Where is the location? Clear? Transportation, place of supply, destination of the good, place of supply, where the passenger embark, place of supply in the first schedule point. For section 13.13, for certain notified services, the central government shall have the power to notify any description of service or circumstances in which the place of supply shall be the place of effective use and enjoyment of the services. IGST notification number 04/2019, supply of research and development services related to pharmaceutical sector. Place of supply, the location of the recipient of the supply services subject to fulfillment of the following condition. Condition number 1, supply of services from the taxable territory are the provided as per the contract between the service provider located in taxable territory and service recipient located in non-taxable territory. Condition number 2, such supply of services fulfill all other conditions in the definition of export of services except sub clause number 3 provided at clause number 6 of section 2 of integrated goods and service
Service Tax Act 2017, 13 of 2017. Place of supply will determine, we will keep in mind these two conditions. 1312 OIDAR. OIDAR के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई लोकेशन ऑफ द रिसिपिडेंट, द टैक्स, द पर्सन receiving such services shall be deemed to be located in the taxable territory if any two of the following non-contradictory conditions are satisfied. First, the condition are the location of address presented by the recipient in the taxable territory, the credit debit charges card etc by which the recipient of the service settled payment has been issued in the taxable territory. Third condition, the billing address of the recipient of the service is in the taxable territory. The IP address of the devices used by the recipient of the services is in the taxable territory. The bank of the recipient of the services used for payment is in the taxable territory. The country code of the SIM card used by the recipient is the taxable territory. The location of the fixed landline of the recipient is the taxable category. So OIDR के केस में जब हम ऑनलाइन डेटाबेस की बात करते हैं तो उस केस में ये सारे कंडीशन हमें फुलफिल करने पड़ेंगे कि हम प्लेस ऑफ सप्लाई, लोकेशन ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो प्लेस ऑफ सप्लाई हमें डिटरमाइन करने के लिए सारी कंडीशंस को फुलफिल करने पड़ेंगे। अगर ये सारी कंडीशन फुलफिल होती हैं तो उस बेस में हम प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन कर सकते हैं। सो गाइज आज के लिए इतना ही। आई होप यू एंजॉय टुडे वीडियो। आई ट्राई टू एक्सप्लेन प्लेस ऑफ सप्लाई इन थॉरोली एंड डेप्थ। आई नो आई रन फास्ट टुडे, but if you feel I am giving you the few value addition, do consider subscribe my YouTube channel, my Facebook page and my Twitter handle. Links are given below. Don't forget to share with your friends. I hope I'll be able to add value and continue to do in future as well. So for today that's it from my side. See you all in my next video. Till then, Jai Hind, Jai Bharat. Thank you.